بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نعیم ہمارے ابا کے پرانے ملازم کا بیٹا تھا۔ جب یہ 11 سال کا تھا تو اس کے ماں باپ زلزلے میں مکان کے ملبے تلے دب کر ہلاک ہو گئے۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ لڑکا بچ گیا۔ والد صاحب اسے اپنے گھر لے آئے اور اس کی پرورش کرنے لگے۔ صرف 8ویں تک پڑھا سکا۔ گھر کے برابر والد صاحب کا گودام تھا جہاں وہ دکان کا مال سٹاک کرتے تھے۔ نعیم کو گودام میں رہنے کے لیے جگہ دے دی۔ کھانا وہ ہمارے گھر سے کھاتا تھا۔ گودام کی صفائی اور رکھوالی کے علاوہ گھر کا سودا صرف بھی اس کے ذمہ تھا۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ نعیم گبرو جوان ہو گیا۔ اس نے قد کاٹ، شکل و صورت خوب نکال لی۔ والد صاحب کو ایک معاون کی ضرورت تھی اور اس لڑکے کا بھی کوئی نہ تھا۔ تبھی یہ اب ہمارے کنبے کے لیے لازمی ہو گیا تھا۔ پاؤں کی جوتی کو کوئی سر پر نہیں رکھتا، یہ میری اماں جان کے الفاظ تھے۔ وہ خدمت گار بیٹا تھا اور اسے خدمت گار ہی رہنا تھا، لہٰذا والدہ نعیم سے فاصلہ رکھتی تھیں، کہتی تھیں کہ میرے گھر میں بچیاں ہیں اور غیر لڑکے کو دہلیز سے باہر ہی کھڑا رکھو گے، اسے گھر کے اندر آنے کی اجازت دینا غلط ہوگا۔ والد صاحب کو اس کی تاکید کر دی کہ اب وہ اندر نہیں آئے گا۔ جو جوان ہو گیا ہے، جو کام ہوگا اس کو باہر سے ہی بتا دیں گے، اور کھانا بھی ڈیوڑی میں رکھ دیا جائے گا، اٹھا لے گا، اور برتن پھر واپس وہیں ڈیوڑی میں دھر کر دستک دے گا تو ہم خود سے اٹھا لیں گے۔ والد صاحب نعیم سے پیار کرتے تھے، لیکن والدہ کی منشا رضا کو بھی محفوظ کی خاطر رکھنا ضروری تھا۔ بس جیسے اماں نے کہا ویسا ہی کیا۔ تاہم کبھی کبھار ہم اس لڑکے کی ضرورت پڑ جاتی تو جب بھی کبھی وہ بھاری سامان ادھر ادھر کرنا ہوتا تو چھت کے جالے صاف کروانے ہوتے یا پھر کوئی سوئچ وغیرہ درست کروانا ہوتا تو امی نعیم کو گھر کے اندر بلاتی، لیکن باجی کو منع کرتی کہ تم ان لڑکے سے زیادہ باتیں نہیں کرنی۔ باجی بھی ایک کایا تھیں، امی کی نظر چوکتی تو نعیم سے باتیں کرنے لگ جاتی۔ وہ اماں کی بات نہ مانتی، ماں کو غصہ آ جاتا اور اکیلے میں سمجھاتے غیر لڑکوں سے زیادہ باتیں نہیں کرتے۔ تم اس سے پردہ کیا کرو۔ باجی سمینہ ان دنوں FA میں تھی۔ امی جان بیمار ہو گئیں اور یہ بیماری جان لیوا ثابت ہوئی۔ بلڈ پریشر کے باعث والدہ کے گردے خراب ہو گئے اور کچھ دن بیمار رہ کر وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ ہمارے لیے یہ صدمہ جان کا تھا۔ میں تب 7ویں میں پڑھ رہی تھی۔ امی کی کمی باجی کی باہوں میں خود کو چھپا کر پوری کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ بھی سمجھدار تھی، مجھ کو بہت پیار کرتی۔ یوں بڑی بہن کے شانے سے لگ کر غم آدھا رہ جاتا تھا۔ FA کے پیپرز دینے کے بعد میری یہ بہن گھر بیٹھ گئی۔ چھوٹے بہن بھائیوں سنبھالنے کی خاطر قربانی دی تو ہم بھی اپنی بہن پر انحصار کرنے لگے اور ان کو بڑا سمجھنے لگے۔ وہ کھانا پکاتی، ہمارے کپڑے دھو کر استری کرتی اور ہم کو تیار کر کے اسکول بھیجتی، اپنے والد کی بھی خدمت کرتی۔ لگتا تھا کہ اماں کا خلا باجی کے پیار نے پر کر دیا، ورنہ تو شاید ہم کو والدہ کی محرومی ختم کر دیتی۔ 8ویں میں ہوش سنبھال لیا تو اپنی اس محسن بہن کو کسی اور کھیل میں الجھا ہوا پایا۔ والد صاحب کام پر نکل جاتے اور رات گئے لوٹتے اور آسیہ اسکول چلی جاتی، ہمارا بھائی بھی پڑھنے چلا جاتا۔ گھر پر باجی اکیلی ہوتی تو وہ چھت سے گودام میں جھانک کر نعیم کو آواز لگا کر گھر کے اندر بلا لیتی۔ کسی کام کے بہانے سے پھر وہ تنہائی کی اس ملاقاتوں نے ایک نئے ٹانگ کا روپ دھار لیا۔ اتفاقاً کبھی میں اور آسیہ اسکول سے جلدی آ جاتے اور کبھی رافع بھائی تو نعیم کو ہم گھر کے اندر بیٹھا پاتے۔ شروع میں دھیان نہ گیا، رفتہ رفتہ میرے دل میں عجیب وسوسے سر اٹھانے لگے، اور یہ روز کیوں گھر میں آتا ہے جبکہ امی ہمیشہ باجی کو منع کرتی تھیں کہ اس کے سامنے نہ جایا کرو، اس کے ساتھ زیادہ بات نہ کیا کرو۔ نعیم اس کی طرح ہر وقت موجود رہنا ہم کو ناگوار گزرنے لگا۔ جب ہم نہ سمجھتے، کسی بات کا خیال نہ لاتے تھے تو جوں عقل آئے گئی، نعیم کو باجی کے ساتھ بے تکلفی سے گفتگو کرتا پا کر دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ہم جانتے تھے کہ وہ رشتہ دار نہیں ہے، ہمارا ملازم ہے، کبھی امی ابو اسے ہم لوگوں کے درمیان گھلنے ملنے نہ دیا کرتے تھے۔ اس کی حیثیت ہمیشہ نوکر کی سی رہی تھی۔ بھائی ہم دونوں بہنوں سے چھوٹا تھا، میں بھی بڑی تھی، تبھی زیادہ تفکر بھی مجھ کو ہوا۔ ابا کی وجہ سے چپ تھی کہ ان کو دکھ نہ پہنچے، لیکن باجی کے لچھن دیکھ کر دل جل کے خاک ہو جاتا۔ پہلے باجی ہمارا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن اب نعیم کی خاطر ہم کو بری طرح نظر انداز کرنے لگی تھی۔ جب وہ ہوتا تو خوب اس کی خاطر تواضع کرتی، اچھے کھانے کو دیتی اور ہم کو ڈانٹتی ڈپٹتی تھی کہ ٹھہر جاؤ، بھوک سے مر تو نہیں جا رہے۔ وہ نعیم کو تر نوالے کھانے کو دیتی اور
हम बैठे मुंह तकते रहते। बाजी के इस रवैये से हम तीनों को उनके खिलाफ कर दिया गया। जब हम नौवीं में ज़्यादा उलझाव में रहने लगे तो एक रोज़ जुर्रत करके बहन को जतलाया भी दिया कि बाजी देखो, तुम जो कर रही हो ठीक नहीं है, बाज आ जाओ, वरना अब्बा से कह दूंगी उस नौकर की ज़ात को तुमसे घर में मत बिठाया करो और उम्दा खाने भी पेश ना किया करो, वरना ये अपनी औकात से बाहर आ जाएंगे तो हम सब के लिए मुसीबत बन जाएगा। बाजी उस दिन मुझे बहुत लान तान की कि अफसोस है कि तुम्हारी सोच पर पढ़ लिख कर जहर रह गई हो। क्या हमारा मज़हब इस बात का दर्स नहीं देता कि अमीर गरीब सभी इंसान बराबर होते हैं? और तुम मुझे गरूर सिखा रही हो। लईम नौकर है तो क्या हुआ है, तो हमारी तरह का इंसान। इतनी हकारत अच्छी नहीं। मैं हकारत नहीं कर रही बाजी, बल्कि आपको एहतियात से काम लेने का कह रही हूँ। अब्बा की लाइल्मी में क्यों इस गैर आदमी को घर में अंदर बिठाती हो, जबकि अम्मा भी फासला रखती थीं और उसको घर में नहीं घुसाती थीं। अपना नहीं तो अपनी बहनों का ख्याल कर लो। यकीनन जब अब्बा को इस बात का इल्म होगा तो वो बहुत नाराज़ होंगे और कभी न कभी उनको उनके इल्म हो ही जाएगा। बाजी पर मेरी तनबिया का कोई असर ना हुआ। हम तो यूं भी मजबूर थे कि छोटे थे, हमको अगर और घर को वही संभालती थी। लेकिन अब जब मैं अच्छा बुरा समझने लगी तो क्या कैसे चुप रहती। मैंने भी कह दिया, अगर बाज ना आई तो सब कुछ अब्बा से कह दूंगी, फिर तुमको मारेंगे या घर से निकाल देंगे। मैं नहीं जिम्मेदार, लेकिन अब मुझसे और ज़्यादा वो कुछ बर्दाश्त ना होगा। जब देखा कि मेरे तेवर कड़े हैं, आपे से बाहर हो गई, जूता उठाकर मारने लगी। उस पर मेरे दिल में तो ऐसे जैसे आग भड़क उठी थी। पहले तो मैं उनको महज डरा रही थी, अब कसम खाई कि जो हो सो हो, अब्बा को ज़रूर इसकी शिकायत करूँगी। शाम को अब्बा घर आए तो मेरा मुंह सूजा हुआ था, आंखें सुर्ख हो रही थीं। उन्होंने प्यार से पूछा, हमारी बेटी को क्या हुआ है, क्यों आंखें सूजी हुई हैं? मैं तो बस फट पड़ी और जज्बात में आकर अब्बा को सब कुछ बता दिया। बाजी ने रोज़ नईम को बुलाकर बिठा लेते हैं, उसे किचन में बिठाकर गर्म गर्म खाने पेश करती हैं। हम तो स्कूल होते हैं, जब भी आते हैं ये मौजूद होता है। यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। अब नईम जाएगा या फिर इस घर में मैं नहीं रहूँगी। कहने को तो ये सब कह गई, लेकिन अब्बा की तरफ ना देखा कि वो तो बस त्यौहार कर रह गए थे। उस वक्त घर से निकल कर गोदाम की तरफ गया और नईम से कहा कि 1 मिनट में यहाँ से दफ़ा हो जाओ और फिर कभी शक्ल मत दिखाना मुझे। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। न जाने क्यों ना कर उन्होंने खुद पर काबू पाया जो नईम को जाने दिया, वरना इतने गुस्से में थे कि खुद मैं डर गई थी कहीं उसका खून ना कर दे। नईम इस वक्त चला गया, खुदा जाने कहाँ। अब मैं पछताती कि जल्दबाजी में अब्बा को बताकर बाजी की बेकदरी कर दी है। जैसी भी थी हमको तो मोहब्बत दे रही थी, देखभाल और हमारे घर का सहारा, सारा काम भी करती थी। तालीम हमारी खातिर छोड़ दी, इतनी कुर्बानी दी ताकि अब्बा कहीं दूसरी शादी ना कर ले, सौतेली माँ ना ला बैठे। अब बुरे दिनों ने मुझे घेरा हुआ था। अब्बा का बस ना चलता कि बाजी को कुएं में धक्का दे देता और उठते बैठते मुझको कोसने की कमबख्त बहन के डैन हो के मुझसे मेरे बाप की शफकत और मोहब्बत छीन ली। नागिन मैं तो हर वक्त तुझ पर निछावर हुआ करती थी और ये तो तूने ये सिला दिया है, मुझे बाप की नज़रों से गिरा दिया। नईम से बातें ही करती थी ना, कभी कोई गलत हरकत करते तो नहीं देखा था। फिर इतनी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर क्यों अब्बा से जोड़ दिया? मैं भी इंसान हूँ, कहीं आती जाती नहीं, हर वक्त तुम लोगों की सेवा करती रहती हूँ। तन्हाई से उकता कर नईम से 2 बातें करना क्या इतना बड़ा गुनाह था कि तूने बेचारे यतीम से रहने का ठिकाना ही छीन लिया? अब न जाने वो कहाँ मारा मारा फिरता होगा। बहुत गुनाह होगा सबिया, देख लेना तुझे तेरा भी बुरा हाल होगा और तू भी ऐसे दर बदर होगी। उसकी बद्दुआ उम्र भर तेरा पीछा करेगी। ये जुल्म बहुत महंगा पड़ेगा जो तूने उसके साथ किया है। जूं जूं वो मुझको कोसती मैं परेशान पशमान होती। नईम तो फिर पलट कर ना आया और ना उसका कुछ अता पता। मैंने रोते पीटते बीए कर लिया, सभी एक अच्छा सा रिश्ता आ गया तो अब्बा ने झटपट मेरी शादी कर दी। बाजी बेचारी अभी तक कुर्बानी का बकरा बनी हुई थी कि एक छोटी बहन और भाई बाकी थे जिनकी देखभाल उन्हें करनी थी। कुछ रिश्तेदारों ने मेरे वालिद को सलाह दी कि अब तुम दूसरी शादी कर लो ताकि घर संभालने वाली आ जाए और फिर तुम समीना की शादी कर देना। वालिद भी चाहते थे कि बाजी समीना की शादी कर दें, लेकिन कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था और वो इसी कोशिश में थे कि उधर बेटी का फ़र्ज़ भी सबक दोष हो तो फिर अपनी शादी के बारे में सोचें। इंसान सोचता क्या है और होता क्या। अब्बा को किसी ने बाजी के लिए रिश्ता बताया और जिस रोज़ वो लड़का देखने के लिए लाहौर जा रहे थे तो पतुकी के करीब उनका एक्सीडेंट हो गया और वो जाँ बर होने में ना हो सके और हमको तकदीर ने एक और ज़ख़म लगा दिया। मैं अपने घर में खुश आबाद थी, लेकिन बड़ा मसला मेरी बाजी समीना और छोटी बहन और भाई का था जो अकेले ना रह सकते थे। अदनान बहुत अच्छे इंसान थे,
दोस्त भी थे और वो मुझे बेहद चाहते थे। मैं उनसे अपने भाई बहनों की मजबूरी बताई तो बोले कि उन सबको यहाँ ले आओ और वो पास रख लो। मैंने कहा ऐसा दुरुस्त ना होगा, मेरे वालिद साहब का ज़ाती मकान है, वो उसी में रहते भले लगते हैं, मकान को ताला लग जाएगा और लोग भी आपको यही कहेंगे कि बीवी के रिश्तेदार पाल रहे हो। बेहतर यह है कि हम ही कुछ अरसे उनके पास जाकर रह रहते हैं, जब तक कोई ऐसा रिश्ता बाजी के लिए नहीं मिल जाता जिस घर का दामाद बनने की शर्त भी कबूल हो। अदनान ने मेरी बात मान ली और हम अपने घर से वालिद साहब के घर मुंतकिल हो गए। वालिद साहब ने काफ़ी रकम बाजी और राफ़े के नाम कराई हुई थी, लिहाजा उन्हें खर्चे की तंगी तो ना थी, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर चाहिए था। बाजी मेरे और अदनान के साथ रहने पर खुश थीं। अब उनको डर ना लगता था कि वो और बहुत से मसाइल से बच गए थे। अदनान हर तरह से मेरे भाई और बहनों का ख्याल रख रहे थे। मैं अलबत्ता वालिद के घर आकर कुछ बेआराम सी हो गई थी, क्योंकि मेरा अपना घर आराम से राहत का गहवारा था, जहाँ नौकर चाकर सभी सहूलियत मुयस्सर थी। अदनान की मुझसे मोहब्बत देखकर हर कोई मुझ पर रश्क करता कि वाह रे किस्मत, बाजी के लिए अभी तक कोई मौजू रिश्ता ना मिला, लेकिन छोटी बहन एफ़ए कर लिया तो उसकी शादी अदनान ने अपनी बहन के बेटे से करा दी। राफ़े भी 8वीं पास कर ली और उसका सिलेक्शन आर्मी की एकेडमी में हो गया। वो जहलम चला गया। अब घर में बाजी, मैं और अदनान रह गए थे। मैंने बाजी से इसरार किया कि आप हमारे साथ घर चल कर रहो, हम बहुत दिन आपके पास रह लिए हैं। मेरा एक ये भी मकसद था कि वो मेरे महल नुमा घर में रहेगी तो मेरे खामन के स्टेटस के मुताबिक उनके लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाएगा। वालिद साहब का घर तो एक मुस्तरद तबके के रिहायशी इलाकों में बना हुआ था और उनकी वफ़ात के बाद उनका हवाला भी ना रहा। रिश्तों में लोगों ऐसी बातों को भी तो मद्देनज़र रखते थे कि बाजी मेरे घर हमारे साथ रहने लगी। हमारे साथ रहते हुए यहाँ उनको एहसास हुआ कि मुझे तो दुनिया दौलत मिल गई। शौहर का प्यार का ख़जाना, अदनान की मोहब्बत मेरे लिए बड़ा सरमाया था, जिससे मेरा घर रश की जन्नत था। वो दिल ही दिल में करने और मुझसे हसद करने लगी। कारें, बंगला, जेवर सभी कुछ तो मेरे पास था। मैं शहजादियों की तरह रहने लगी। नौकर चाकर मेरे आगे पीछे हाथ जोड़े रहते थे। खुदा ताला ने मुझे 2 बेटियों से भी नवाज दिया, लेकिन मेरी बहन के नसीब ने फूल ना खिलने के कई बार रिश्ते की कोशिश हुई, लेकिन बात बनती और फिर टूट जाती। अल्लाह जाने क्या वजह थी। हालांकि मैं और अदनान खलूसी दिल से चाहते थे कि भाई समीना अब अपने घर की हो जाए। उनकी शादी की उम्र निकली जा रही थी। वही हुआ जिसका डर था। बहुत कोशिशों के बावजूद उनका रिश्ता ना हो सका और उनकी शादी की उम्र निकल गई। मैं तो खुश और मुतमईन अपने बच्चों की चहकारों में गुम थी, लेकिन मुझसे कई बरस बड़ी बहन तन्हाई की आग में झलस रही थी। मुझे महसूस होने लगा कि जब मैं अदनान के करीब होती हूँ और हम प्यार मोहब्बत से बातें करते हैं, बाजी खो सी जाती है। अब तो अक्सर वो हमको हंसते बोलते देखकर ठंडी आहें भरती थी और उनके चेहरे का रंग ही बदल जाता। तभी मुझे बाजी और उसकी ज़्यादा फिक्र लगी और मैंने उनकी कोई खुश देखने की खातिर अदनान से कहा कि आप बच्चों और बाजी को लेकर सैर को चले जाएं। तीसरे बच्चे की आमद थी, इसी वजह से मेरी तबीयत ख़राब रहती थी और घर से बाहर निकलना मेरे लिए दौ भर हो रहा था। गर्मियों की छुट्टियां थी। मैंने अदनान को मजबूर किया कि बच्चों को मरी की सैर करा लें। मैं नहीं जा सकती, बाजी को ले जाए। उन्होंने बहुत कहा कि बग़ैर तुम्हारे सैर का क्या लुत्फ़ आ गया। मैंने ना मानी। दरअसल मैं तो बाजी को खुश देखना चाहती थी, क्योंकि उन दिनों वो बहुत बुझी और उदास रहती थी। बस उसी दिन से मेरी खुशियों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया और मेरी बर्बादी का आगाज़ हो गया। सैर से वापसी पर मेरी बहन का मूड मिजाज कुछ और था और अदनान की नज़रें भी बदली थीं। वजह मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि इस रिश्ते को मैं शक व शुबा से बालातर समझती थी जो मेरी बहन और मेरे शौहर के दरमियान था। अदनान ऐसे प्यार करने वाले शौहर जिस पर एक बीवी पूरा भरोसा कर सकती थी, जबकि बाजी ने तो उसे मुझे बहुत प्यार दिया था। माँ के गुजर जाने के बाद उनकी यादों को उसी बहन की मोहब्बत ने भरा था। लेकिन आज ये क्या कि दोनों में मुझसे निगाहें मिलाते हुए शर्मा रहे थे। मैं हैरान और ख़ामोश थी। तहम्मुल से काम लिया, ख़ुद को समझाया। सगी बहन पर शक व शुबा नाकाबिले माफ़ी ये जुर्म है। मामूल के कामों में लग गई, लेकिन बाजी के रंग ढंग बनाव सिंगार से दिल को धड़का सा लग गया। खुदा जाने क्यों जी को बेसुकूनी खा रही थी। तीसरे बच्चे के जन्मदिन में अस्पताल में थी। जब घर लौटी तो ये घर मेरा ना रहा। अदनान ने माफ़ी मांगी और कहा कि तुम्हारी बहन का कसूर है। मैंने तो तभी ऐसा सोचा ही ना था, लेकिन अब जो हो चुका है उसको बताए बगैर मेरे ज़मीर का बोझ हल्का ना होगा और बढ़ता जाएगा। उन्होंने जो कहा सुनकर सन्नाटे में रह गई। जिस कदर मातम करती कम थी। कभी बहन की जानिब देखती तो कभी शौहर की तरफ देखती। दुख तो ये था कि बाजी को अपने इस कनीबिया फैल पर
कोई दुख ना था, कोई शर्मिंदगी ना थी। दिल अदनान को धुतकार रहा था, फिर भी उन्हें छोड़ना ना चाहती थी कि 3 बच्चों की ज़िंदगी का सवाल था। लेकिन इखलाकी एतबार से अब मुझे उनके निकाह में नहीं रहना था, क्योंकि अब मेरा अपने शौहर से कोई नाता ना रहा था। मुझे उनका घर छोड़ना ही पड़ा। उन्होंने मुझे तलाक दे दी और मैं अपने वालिद के घर आ गई, जहाँ अरसा से ताला पड़ा हुआ था। बाजी ने अदनान से निकाह करके मेरा घर संभाल लिया, मेरी जन्नत पर हकदार बन गई। उन्हें मेरे लिए ज़रा भी मलाल ना था और ना ही मेरे बच्चों पर उनको रहम आया। मैं दिन रात यही सोच सोच कर हैरान होती और घिलती रहती हूँ कि इस कदर करीबी रिश्तों का भी कोई एतबार नहीं। हमारी कहानी को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। शुक्रिया।